ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਲਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਜਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੋ। ਐਸੇ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਕਿਅਤਨ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਾਂ ਦੇ, ਆਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਲਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਭਰੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੂਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਤਮੀਨ ਬੋਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਕ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ੀਰੁਨ ਨਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀ ਧਰਿਆ? ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। और गल की हो रही है, वो एक ने वीडियो बनाई है ते उन्हें क्या देखो जी वो लाजवाब हो गए, फलां हो गया जी लाजवाब हो गए। और दूजे ने कहा कि तू है गल क्यों की लाजवाब हो गए। जे असी लाजवाब होए हैं तो देखो ना फलां जगह ते साडा मुनाजरा सी, तुसीं लाजवाब हो गए ते फायदा कौन चुक रहा है? उत्थे मर गए। और कल भी इसे जगह ते इसे गल ते असीं ब्रांड लाई सी कि गड्डी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जहालत है कि बेवकूफ़ी की वजह ना उन्होंने सोशल मीडिया ते दे रहे हैं व्यूज़। अगर तुहानूं नहीं पता, सिनेरियो का नहीं पता, इत्थे माहौल का नहीं पता, तुसीं बैठे हो चौथी जगह ते नहीं पता, तो एवें एक दूजे नाल गल्लां करन बंद कर दो। नहीं अमर अस्सलाम वालेकुम मामूर भाई, की हाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। अमर भाई, मैं मिर्ज़ा जूनियर दी जो आडियो सुनी है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ 2009 ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੱਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ کہ تسی اپنے دائرے دے وچ چھوٹے چھوٹے خدا بنو، منی خدا بن جاؤ، اپنے دائرے میں چھوٹے خدا بننے کی کوشش کرو، بڑا خدا پھر تم سے آپ ہی محبت کرنے لگ جائے، اور پھر یہی عقیدہ وہ جنت میں دیتا ہے کہ جنت میں منی خدا بن جاؤ گے۔ اب سیم ٹو سیم ایک بھی ورڈ ادھر کا ادھر نہیں ہے، سیم ورڈ اس نے اپنی ویڈیو میں بولا ہوا ہے کہ اللہ نے آفر کروائی ہے کہ وہ خدا اس سے محبت کیوں نہ کرے کہ وہ آپ کو آفر کروا رہے ہیں، آپ کو یہ آفر کروائی گئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ اب سیم سٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے لائق کر لینا ہی کام نہیں ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جنت حاصل کر لینا ہی کام نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات کو اپنے اندر آپ نے پیدا کرنا ہے۔ وہ خدا کہتا ہے میری صفات اپنے اندر پیدا کرو، تم اپنے دائرے میں چھوٹے خدا بن جاؤ گے، میں تمہارا بڑا خدا۔ اچھا میں نا ایک خاص گل کرنا، سمیر بھی آ گیا۔ سمیر صاحب ذرا غور سے میری بات سننا بھائی جان۔ جی جی، ایک بندہ جس نے ابھی چند مہینے پہلے مرزائیت پر لعنت بھیجی ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس کا مجھے میسج آیا ہے، 2-3 دفعہ اس نے مجھے میسج کیا ہے۔ ابھی جو لاسٹ میسج ہے وہ میرے موبائل میں محفوظ ہے، میں کسی کی پرائیویسی لیک نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کہے گا اس کو میں سنوا دوں گا میسج۔ وہ نو مسلم ہے، اس کی فیملی ساری قادیانی ہے، مرزائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی پر کوشش کر رہا ہوں کہ میری فیملی بھی اس گڑھے سے نکل آئے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، لیکن وہ کہتا ہے میری اس ساری کوشش پر پانی پھیرنے والے پہلا نمبر انجینئر کا اس نے لیا نام، دوسرا اس نے مفتی ہمدرد کا نام لیا، وہ جو کراچی میں بیٹھا ہو جس نے اس مناظرے پر بکواس کی ہے، تیسرا اس نے یہاں ٹک ٹاک کے 2 بندوں کا نام لیا، باسی کا اور پپو ملک کا۔ اس نے کہا کہ میرے فیملی کے بندے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پر ہی ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ مرزائیوں کی وائرل کی ہوئی ویڈیوز دیکھی کہ انجینئر کیا کہہ رہا ہے، وہ مفتی ہمدرد کیا کہہ رہا ہے، یہ جو ایک بریلوی مولوی ہے، ایک مفتی پتہ نہیں دیوبندی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کی منجی ٹھکائی کر رہے ہیں، اور یہ جو اب جتنا قد بندے کا بڑا ہوتا ہے نا، اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے بات کی۔ انجینئر کا یقینی طور پر ٹک ٹاکر جتنے بھی ہم ہیں، ہم سے تو اس کا قد بڑا ہی ہے، اس کی ویورشپ زیادہ ہے، اس کی فالوئنگ زیادہ ہے، اس کی بات زیادہ وائرل انہوں نے کی ہے، اور زیادہ اس کے والدین نے، اس کے بہن بھائیوں نے اس کو وہ ویڈیو پیش کیا کہ یہ دیکھو انجینئر کیا کہہ رہا ہے ہمارے مربیوں کے سامنے، تمہارے مولوی لاجواب ہو گئے، تم کس اسلام میں گئے ہو، تم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ یہ تو سارے ایک دوسرے کو کتا کہہ رہے ہیں۔
वो कहता है मैं अपनी फैमिली को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, ये उन लोगों की हदायत के रास्ते में रुकावट हैं। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों की हदायत के रास्ते में रुकावट हैं। तो इसके बाद क्या इन लोगों को अपने पास बिठाकर इनका इस्लाम, इनका मुसलमान होना सुनना चाहिए कि ये मुसलमान है या इनका कोई इस्लाम है, या ये कोई मतलब मुसलमानों की तरफ से होकर फिर ये बकबक करें और कहें कि मुसलमान हार गए और मिर्ज़ाइयों के सामने लाजवाब हो गए। इनकी ये बकवास सुननी चाहिए हमें बिठा के साथ। ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे, पता है आपको किसका नुकसान कर रहे हैं? अल्लाह के नबी की उम्मत का नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के दीन इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है ये लानती जिनका उसने नाम लिया है। इन लानतियों को अगर ये खुद को मुसलमान भी कहते हैं ना, तो इनको दूर रखना चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इनको दूर रखना चाहिए। मैं बाई चांस ही आपकी ब्रॉड से गिरा हूँ, मैंने ब्रॉड आपकी छोड़ी नहीं थी। उधर सिग्नल कम आते हैं जहाँ मैं था ना, तो वहाँ पर रोज सुबह सिग्नल का मसला होता है। मैं बाई चांस ब्रॉड से गिर गया। जब मैंने देखा तो वो पप्पू मलक लगा हुआ था मेरे बारे में। इस लानती को तो मैंने सारी जिंदगी अपने साथ इंशाल्लाह ब्रॉड पे, टिकटॉक पे बिठाने का कसद कर लिया कि कभी भी ये नहीं बैठेगा मेरे साथ। जिस ब्राड पे मैं होऊंगा, भले मुझे पीछे से ये कहता रहे भाग गया, छोड़ गया, दौड़ गया, डर गया, जो मर्जी कहता रहे। ऐसे मुसलमान, ये इसका और दूसरों का फर्क ये है, 4-5 दूसरे भी हैं। एक औरत है, एक सपनी है, 3-4 सांप हैं। दूसरों को थोड़ा शर्म क्या है, वो उधर आते नहीं जिधर मैं बैठा हूँ। ये बेशर्म है, ये जिधर भी मैं जाता हूँ ये उधर ही आ जाते हैं। तो बस इतना मैंने कहना है कि आपकी मेहरबानी है, जब मैं आपकी ब्राड पे बैठा हुआ हूँ, या इसको ना लिया करो या मुझे उतार दिया करो, उसके बाद बेशक इसको ले लो और इससे बात करवा लो कि ये अच्छा, ये मुसलमानों का हमदर्द है, इस्लाम का हमदर्द है, नबी पाक की उम्मत का। मैं तो उनको जानता तक नहीं, और मुझे पता नहीं था कि आपका और उनका कोई ऐसा मसला है, तो वरना मैं उनको ऊपर नहीं, मेरा उनके साथ कोई मसला नहीं, मेरा उनके साथ कोई मसला नहीं है। उनका मसला नबी के दीन के साथ, नबी की उम्मत के साथ। मेरा जाती तो कोई, मेरी जाती तौर पर तो इसको मैंने इतनी रिलैक्सेशन दी है, इसकी वजह से अपने कई मुसलमान भाई, ये यूसुफी है मेरे ख्याल 3 महीने मेरे साथ नाराज रहा है, ये 2 महीने। वो तो मेरे सामने अभी 2 मिनट पहले कहा ये पप्पू मलिक ने कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मानता हूँ। हाँ, उसके बाद जो भी कहता है मैं दावा करेंगे उसको कज़्ज़ाब व दज्जाल मानता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, वो मुसलमानों वाला कीदा। मैं उसको ये नहीं कह रहा वो काफर है, मैं उसकी तकफीर नहीं कर रहा भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिर्जाई है, ना मैं कह रहा हूँ वो काफर है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुसलमानों का और नबी की उम्मत का हमदर्द नहीं है, दुश्मन है, नबी की उम्मत का बदतरीन दुश्मन है ये भी। और एक सपनी है और 3-4 सांप हैं। ये टिकटॉक पर अपनी कोई जाती इनकी ख्वाहिशात हैं, क्या है इनको मसला क्या नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के और अहले इस्लाम के बदतरीन दुश्मन है। कहने को वो मुसलमान ही होंगे भाई। देखें, अगर वो इस्लामी अकीदा पेश करते हैं तो उनका अकीदा तो उनके काम आना है, मेरे काम आना है। अगर वो कहता है मैं नबी पाक को खातमुन नबीयीन मानता हूँ, मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल मानता हूँ, तो ये उसका अकीदा मेरे काम आना है, मेरे परेशान करता है। ये कहता है उसका ये अकीदा उसी के लिए है। लेकिन अगर वो मुसलमानों को कंडेम करता है, मुसलमानों के बिलमुकाबल मिर्जाइयों को अप्रिशिएट करता है, ऐसे बंदे पर मैं अल्लाह की लानत भेजता हूँ। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो मुसलमान है तो कल क़यामत के दिन जाके अपना इस्लाम पेश कर ले ले अपना जो इनाम मिलता है उसको। मेरा उससे क्या लेना देना भाईजान। मैं तो आप में से उस बंदे को अपना भाई समझता हूँ जो इस्लाम के लिए, नबी की उम्मत के लिए हमदर्दी रखता है, दर्द रखता है, खुलूस रखता है। मैं तो उसको अपना भाई समझता हूँ। आप भी अगर ये काम करेंगे कि आप मिर्जाइयों की हौसला अफजाई करेंगे और कहेंगे मिर्जाइयों के सामने मुसलमान लाजवाब हो गए, मुसलमानों ने नाक कटवा दी, मुंह काला करवा दी, मैं आपको भी कहूँगा कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। इतनी बात है, वरना मैंने तो ऐसी बात नहीं कही है। मैं जर्नल असूल बयान कर रहा हूँ। अगर आप कहें या कोई भी इनमें से कहिए, जितने लोग भी बैठे हुए हैं या नीचे सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी ये बात कहेगा तो मैं कहूँगा भाई तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ है, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। पता नहीं तुम मुसलमान हो भी या नहीं, मैं तुम्हारी तकफीर नहीं करता। जब तुम इस्लामी अकीदा बयान कर रहे हो तो मैं तुम्हारी तकफीर करने पर एग्री नहीं हूँ। मैं तुम्हें काफिर नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना, मैं तुम्हें दुश्मन समझता हूँ इस्लाम का और अहले इस्लाम। तो ऐसा होता है
खुद को मुसलमान कहने वाले और कलमा नबी का पढ़ने वाले ऐन मुमकिन है कि वो इस्लाम के और अहले इस्लाम के दुश्मन बनकर, सांप बनकर उनको डस रहे हों। और ये होता रहा है 14 सदियों में, एक दिन भी खैर से नहीं गुजरा, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मुसलमानों को सुकून से, चैन से और राहत नसीब हुई। आप जानते हैं एक हदीस है, मेरा ख्याल है ये बुखारी या मुस्लिम ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में लेटे हुए थे। इतना इन मुनाफिकों का खतरा रहता था, इतना इन मुनाफिकों का खतरा रहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे उम्मुल मोमिनीन से कि क्या कोई है आज जो मेरे दरवाजे पर पहरा दे और मैं सुकून की नींद सो जाऊं। इतना खतरा था। इन मुनाफिकों का ही कोई पता नहीं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश करें, उनको मारने की कोशिश करें। आप अंदर खैमे में लेटे हुए हैं, दरवाजे पर कोई बंदा पहरा देने वाला नहीं। और खतरा किन से? इनसे है। वो मक्के वाले तो इतनी दूर से नहीं ना आएंगे, मक्का वाले तो मुशरिक जो है वो तो दूर है, इधर खतरा है मदीने में। फिर एक सहाबी आए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, वो आए, वो दरवाजे पर खड़े हो गए, किसी ने बुलाया भी नहीं उनको, वो खुद ही आ गए। वो कहने लगे या रसूलल्लाह आप आराम करें, मैं आपके दरवाजे पर पहरा देता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं फिर नबी अलैहिस्सलाम गहरी नींद सो गए, सुकून की नींद, यहाँ तक कि मैंने आपकी खराटों की आवाज़ सुनी। उस दिन से लेकर आज के दिन तक 2026 तक वो कौन सी रात थी, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा हफ्ता था, वो कौन सा महीना था, वो कौन सा साल था, वो कौन सी सदी थी जिसमें ये लानती आस्तीन के सांप मुसलमानों में पैदा ना हुए हों और इन्होंने मुसलमानों को ना डसा हो। खुद को मुसलमान कहते हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं। बल्कि अब्दुल्ला बिन उबई तो खड़ा होकर कहता था, जब नबी अलैहिस्सलाम जुम्मे का खुतबा देने के लिए आते थे, वो खड़ा होकर कहता था लोगों ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बातों को गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो और इनकी बातों पर अमल करो। लेकिन इतना बड़ा लहीन, इतना बड़ा मुनाफिक कि रईसुल मुनाफिकीन उसको कहा, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, तो कलमा नबी का पढ़ता था। भाई निफाक भी साथ साथ चलता है, ईमान भी साथ साथ चलता है, इर्तदाद भी लोग करते हैं, कुफर भी लोग करते हैं, जिंदगी भी पैदा होते रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। हर बंदा वो एक जैसा मुसलमान नहीं होता। वो कहने को खुद को मुसलमान अगर है, वो जाके अपने इस्लाम की और ईमान की जो गवाही है अल्लाह को देकर अल्लाह से ईमान पाले, अल्लाह से गवाही पाले, अल्लाह से इनाम पाले। मुझे इससे कोई लेना देना इन सांपों से और इस सपने से मुझे कोई लेना देना नहीं भाईजान। मैं तो इन पे अल्लाह की लानत की। अब तो वो कुनूत नाज़िला पढ़नी रह गई है, क्योंकि जब मैंने उस नौ मुस्लिम की बात सुनी मेरा दिल रोया। मैं ज़ाती तौर पर कभी गुस्से में नहीं और परेशानी में नहीं आता कि चलो मुझे गाली दे दिया, अच्छा किया गाली दिया, मैं मशहूर ही हो रहा हूँ। जितना गालियाँ देते हैं लोग मशहूरी करते हैं। वो तो इकबाल ने कहा ना, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये तो जितना मुझे गालियाँ देते हैं वो तो मुझे फ़ायदा होता है, उसका तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। लेकिन जब मैंने उस नौ मुस्लिम की बात सुनी, अल्लाह की कसम मेरा दिल रोया, मेरा दिल खून के आंसू रोया कि ये ऐसे लानती हैं, ये उनके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं जिन्होंने मिर्जायत पर लानत भेजकर इस्लाम की तरफ आना है। ये उनके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। इनको ब्लॉक करो, इनको दफा करो, इनसे जान छुड़ाओ। अगर आप सब जितने बैठे हो, अगर आप सब अपने नबी के साथ मुखलिस हैं, अपने नबी के दीन के साथ मुखलिस, अपने नबी की उम्मत के साथ आपका कोई खलूस है, इन लानतियों को ब्लॉक करो, म्यूट करो और इनसे जान छुड़ाओ, इनसे पीछा छुड़ाओ। इनको मुसलमान, मैं नहीं कहता कि आप इनकी तकफीर करो, मैं ये कहता हूँ कि इनको अपना भाई ना समझो, इनसे बरात का ऐलान करो, इनसे पीछे रहो। अभी भी यहाँ पर बैठे हुए आप लोग में से मैं जानता हूँ जो अभी इन शैतान के चेलों के साथ अभी 2 मिनट के बाद जाकर बैठे होंगे, भाई भाई कह रहे हो। इन्होंने जितना नुकसान किया हुआ है और जितना कर रहे हैं, आप अगर उसमें अपने नबी के दीन के साथ मुखलिस है तो फिर आपका इनसे पंजा लेना बनता नहीं। लेकिन अगर आप भी ज़ुबान की सिर्फ खराश दूर करने के लिए आते हैं, ठीक है, खिंची पिटी जाओ भाई, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो अपनी ज़ात का, कुरान कहता है वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाने वाला। आप अपना बोझ उठाएंगे, मैं अपना उठाऊंगा।
मैं तो ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूँ अल्लाह की, जो अल्लाह के नबी की उम्मत के इतने दुश्मन बने हुए हैं, जिन्होंने इस लंदन मुनाजरे पर बैड कमेंट्स किए हैं और ये अल्फाज कहे हैं कि मिर्ज़ाइयों के बेमुकाबल मुसलमानों का कोई मुनाजर जवाब सही नहीं दे सका, या वो लाजवाब हो गए, या वो साकत हो गए, या मिर्ज़ाई हावी पड़ गए। मैं तो अल्लाह से उनके लिए लानत की दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू इनको संभालिए। अपनी सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशात के लिए किस हद तक गिर गए। वहाँ पर मुनाजरे में खलत मबस हुई है, ये बात ठीक है, इसको मैं भी मानता हूँ, खलत मबस हुई है। फैसला कुन मुनाजरा नहीं हो, फैसला कुन मुनाजरा ना हो तो मिर्ज़ाई तिड़ तिड़ करता है, मिर्ज़ाई कहता है मैं जीत गया हूँ। फैसला कुन मुनाजरा ये होता है कि जूता उतार के उनके सर पे मारे और ऐसा शदीद लगे कि मिर्ज़ाई आपको 21 तोपों की सलामी दे के कहीं भी बाहर निकलो, से दरवाज़ा बंद कर, बैठक से बाहर हो। वो होता है फैसला कुन मुनाजरा। जब आप उनके मुंह में उनका गंद डालते हैं तो वो चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। पर ये है कि वो वहाँ पर दो तरफा जो इबारात पढ़ी गई हैं उनसे खलत मबसी हो गई है, वो धुंध सी छा गई तो गाइयों ने नारे मारने शुरू कर दिया हम जीत के। वरना जो दलाइल इन्होंने पेश किए हैं हमारे मुसलमान मुनाजरों ने, उनका तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन लानतियों को बजाय इसके चाहिए तो ये था कि अपना जवाब देते कि भाई जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह बोले नबी की बातें रखी जा रही हैं, तुम इनको मानते हो नहीं मानते, क्या करते हो? उसके बजाय उन्होंने वो सूफियों के अकवाल और पता नहीं वो बेसबूत जो इबारात हैं जिनके कोई सनद भी नहीं है, पता भी नहीं। वो अब कल रात को भी सहनी साहब की बरात पे वो पेश कर रहे थे कसीदा गौसिया, पता नहीं वो किसने लिखा है, क्या लिखा है उसने, हमें क्या लेना, मुझे क्या लेना देना उस कसीदा गौसिया से। मैं तो उनको जानता तक नहीं, हाँ मैं तो उनको जानता तक नहीं। अभी ये लोग बात करते हैं रहमतुल्लाह किरानवी साहब का, ये इसका नाम तो मैंने खुदा की कसम मैंने नहीं सुना है इनका नाम। ठीक है, पता नहीं आप जानते होंगे आप लोग, लेकिन मैंने तो इस तरह के नाम है, मैं ठीक है कोई बुजुर्ग आलिम सूफी बंदा हुआ करता था, लेकिन मैंने नहीं सुना इनके नाम और इनकी किताबें भी मैंने नहीं पढ़ी और वो हुज्जत भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए हुज्जत नहीं, असल चीज़ ये है कि उनकी हर बात मेरे लिए हुज्जत बेहतरीन बात। जी तो मतलब वो कहते हैं कि नहीं वो लोग तो सफ़हाए किराम, तो अगर उन्होंने कुछ लिखी है तो सही लिखी होगी, लेकिन हुज्जत नहीं है मुसलमानों के लिए, तो हुज्जत नहीं है। इस तरह की किताबें तो बहुत है लेकिन हुज्जत नहीं है भाई। अगर वो हुज्जत नहीं है, उनको भी पता है कि मुसलमान इन बाबों की बातों को या इन बेसनद तहरीरात को अपने लिए हुज्जत नहीं मानते और ना इस तरह के नज़रियात और अकायद को फॉलो करते। असल चीज़ ये है कि जो वो बातें लिखी हुई हैं, मसलन कल रात को जो वो पेश कर रहे थे, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ कौल मंसूब है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने मुरीदों के गुनाहों का मतलब ज़िम्मेदार हूँ कि अगर वो कोई गुनाह करे तो मेरा मुरीद हो तो वो उसको पता नहीं कोई इस्तिस्ना हासिल है या गुंजाइश। अब ये बात कैसे लिख सकते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी? हम तो उनको जितना जानते हैं उसके मुताबिक तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी का कौल हो। पता नहीं किसने लिख दिया, क्या लिख दिया, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम इसको खुराफात मानते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा लिखता है, गलत लिखता है, कोई कह ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी नहीं ये बात करके गए जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब की हुई है। लेकिन बात यह है कि वो किताबें बेसनद है, अकवाल बेसनद है। 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए बगदाद, ईरान में पैदा, बगदाद में दफन हो जाएगा। अब बताओ कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी की उस किताब का जो वो कहते हैं कि ये उनकी किताब है, क्या यकीन है कि ये उनकी किताब है और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई या उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई? जो अल्फाज उसमें लिखे हुए जो उनकी तरफ मंसूब किए जा रहे, उनको तो कोई मुसलमान ऑन नहीं करेगा। हाँ, जो करता है वो बात कर ले जाके, तो उनको ऑन नहीं करते। तो मैंने तो उठा के परे फेंके, मैंने कहा बारी पता नहीं किसका ये पेश कर रहे हो, क्या इसमें लिखा हुआ है, ना हम इसको मानते हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह के नबी की बात मानते, बस हमारे लिए हुज्जत नहीं है ये जो बातें आप पेश कर। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी का हाल ये हो चुका है, वो ये चाहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को इन सूफिया की इबारात के पीछे या इन सूफिया की तरफ जो मंसूब
इबारात है, मनसूब इबारत। मैं नहीं मानता कि किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इस तरह की खराफात लिखी होंगी, जो कई किताबों में मैंने खुद भी पढ़ी हैं, देखी हैं। मैं नहीं मानता कि ये उन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर उनकी तरफ मंसूब कर दी गई है तो वो खुराफात उनके पीछे मिर्जा कादियानी को छुपाना चाहते हैं। ये हाल हो गया मिर्जाइयों का कि वो चाहते हैं किसी बाबे के पीछे जगह मिल जाए, छुपा लें इसको। तो हम तो उनका तो हमें कोई वो परवाह नहीं है, ना उन्होंने कोई परवाह की, ना हम परवाह करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है वहाँ पर वो मिर्जाइयों ने ये इबारतें पेश करके तो अपनी रात निभाई है। लेकिन अगर कोई खुद मुसलमान ये कहता है कि नहीं नहीं वो मुसलमानों को उन्होंने लाजवाब कर दिया, हमारे बापों ने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो दरअसल मुनाफिक है। वो दरअसल मुनाफिक है। वो मुसलमान, उसका इस्लाम उसके लिए, हम नहीं जानते उसका इस्लाम है भी या नहीं, लेकिन वो नबी की उम्मत का जरूर दुश्मन है। क्योंकि वो दोनों मुसलमान, वो क्या नाम है अपने अदनान रशीद और इम्तियाज भाई, वो तो मुसलमानों की ही बात कर रहे थे ना, मुसलमानों के केस लड़ रहे थे ना, उसमें उन्होंने कोई गलती भी नहीं की है। मिर्जा कादियानी का गंद उन्होंने पेश किया। जवाब में अगर कोई ऐसी बात जो उनके लिए हुज्जत नहीं है वो पेश उनके सामने की जाती है, तो ये समझो कि मिर्जाइयों ने तो अपने आप को बचाने के लिए वो बातें पेश की हैं कि किसी तरह हमारे ऊपर से ये नज़ला वो उतर जाए, पीछे हट जाए। तो दर हकीकत तो मिर्जाइयों को शिकस्त हुई है उस मुनाजरे में। लेकिन जिन लोगों ने इन पर अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए एक दूसरे का बुग़्ज़, बरेलवी का देवबंदी से, देवबंदी का बरेलवी से, इंजीनियर का सब से, अहले हदीसों से भी, देवबंदियों से भी, बरेलवियों से, सब से उसका बुग़्ज़, उसका तो मैं अपनी माँ से बुग़्ज़ होगा कि मुझे पैदा क्यों किया उसने। तो कहने का मतलब ये कि अपने बुग़्ज़ और खुन्नस को निकालने के लिए जिन्होंने ये बैड कमेंट्स किए हैं और अभी भी टिकटॉक पर कई कान टुट्टे कर रहे हैं, इनसे बरात का ऐलान करें, इनको अपने प्रोफाइल से निकालें। ये लानती जब आपको नजर आए इनसे दूर हट जाएं। जिस तरह मैं बाई चांस ही गिर गया, लेकिन फिर मैं इसीलिए नहीं गया, मैंने कहा ठीक है, अच्छा ही हो गया गिर गया, मैंने उसको देख लिया था, वो आ गया। तो मैं उस वक्त कहना चाहा, लेकिन उस वक्त मलक साहब बड़ी फार्म में आए हुए थे, तो मैं मलक साहब की बात का जवाब देना चाहता था। मलक साहब की वही पुरानी वो टोन है, वो जो कुरान को मानता है, नबी को मान कर बंदा मुसलमान होता है। तो मुसलमान कज़ाब को मानो, फिर मुसलमान कज़ाब को भी मान कर, तुमने तो मान कर मुसलमान ही होना है ना। अगर मिर्जा कादियानी को नबी माना है तो मुसलमान कज़ाब को भी मानो। क्यों नहीं मानते? अब्दुल गफ्फार जंबा को क्यों नहीं मानते? बेहावला रानी को क्यों नहीं मानते? चलो मुसलमान के बारे में तो नबी पाक की सनद मौजूद है, उन्होंने काफिर करार दे दिया, उसको कज़ाब करार दे दिया। ये जो यहाँ पर लगे फिरते हैं कितने मुदैया ने नबूवत, MSR चीमा तुम्हारी आंखों के सामने रोज कहता है मुझसे खुदा कलाम करता, मानो इसको। नबी को मानकर बंदा मुसलमान ही बनता। मैं मलिक साहब की बातों का जवाब देना चाह रहा था इन बातों, लेकिन वो एक तो सिग्नल नहीं थे, वो गिर गया। मैं ऊपर से मैंने देखा ये गंदा कीड़ा वहां। ये इसका नाम नादिर है ना, मुरब्बी जो वो ब्रॉड चलाता है ना, तो उसने क्या किया था ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये आप खुद देख ले। 1 मिनट। वीडियो है कि ऑडियो है? नहीं, एक तस्वीर है। अच्छा, मैं बड़ी स्क्रीन पे करूँ आपको? 1 मिनट। तो ये अभी मेरा यार, ये मेरा असल चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलत काम की उसने। यार क्या हो गया इसको? नादिर ने? जी बिल्कुल। उसने क्या किया है कि मिर्ज़ा साहब के नाम को ऊपर रखा था और नीचे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं उसके ब्रॉड पे चला गया कि मैंने कहा भाई आपका जो भी अकीदा है आप रख सकते हो, लेकिन कलमे को मिर्ज़ा साहब के नाम के नीचे मत रखो, इसको ऊपर डालो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं करता। तो ये बखूबी उसकी मैंने स्क्रीनशॉट भी ली है। अभी मैं यार 1 मिनट में वापस आता हूँ। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, बाकी सब भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम शुक्र। मैं सुन रहा हूँ, मेरे पीछे थोड़ा शोर है इसलिए मैंने म्यूट में करें बात। आमिर भाई आज आप वो जहाँ पर मैं नाम लिए बगैर ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप जिस साहब से बात कर रहे थे ना, मलक साहब से पहले, वो भाई साहब आज सुबह को आपका नाम लेके किसी बंदे को ये कह रहे थे कि वो जब आप आमिर नज़ीर साहब की ब्रॉड पर बैठते हैं, उनकी सबसे बड़ी ब्रॉड है, इम्तियाज़ साहब की ब्रॉड पर बैठते हैं, अमर हक की ब्रॉड पर बैठते हैं, और वो मिर्ज़ा साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप म्यूट करके बैठे होते हैं, तो क्या आप भी उनके जिम्मेदार होते हैं? वो उनसे इस तरह ले रहे थे बात, इस तरह फतवा चला रहे थे। तो अभी मैं देख रहा था कि वो आपके सामने आए हुए थे, तो वो कह रहे थे आमिर भाई तो बहुत अच्छे हैं, ये तो इस तरह की कोई बात ही नहीं करते। तो मैं देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि मैंने कहा यार कनिंगनेस की भी कोई हद होती है। लेकिन आप फिर भी पहुंच गए थे टाइम पे, लेकिन आपको मौका कम ही मिला है, मैंने देखा। अच्छा, आपकी इस बात का सिर्फ इतना ही जवाब है वलीद भाई, इन बातों से जल्दी परेशान ना हों। देखें ये टिकटॉक है, लाइव चल रहा होता है, कोई पता नहीं होता अभी इस वक्त हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं और दूसरी ब्राडों पर हमारे बारे में कोई क्या बात पता नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बातें कन्वे हो जाती है ना, जिस तरह अभी आपने बता दिया। आपने देख लिया कि ये बंदा किस किरदार का मालिक है, 5 मिनट पहले किस जुबान से बोल रहा था और अभी उसी मुंह से और उसी जुबान से कौन सी बोली बोल रहा है। ऐसे ही दीगर लोग भी जो है ना, वो भी इनको देख रहे हैं। अगर कोई इस तरह का 2 नंबरिया है भाई, वो नजर आ जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। इसके लिए अल्लाह ताला का फतवा आमिर भाई आवाज़ में ना आपकी ज़रा कट रही है। मैं एक बात बता दूं कि वो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर भी किया दोस्तों से। वो चीज़ ठीक है कि एक शख्स जो है ना वो ज़ाहरी तौर पे अपना ऐलान यही कर रहा है, लेकिन कई ब्रॉड्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास भी मौजूद है, मैंने की भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ये शख्स गालियाँ देता है, और फिर कई ब्रॉड जो मैंने रिकॉर्ड की हैं उसमें क्या करते हैं कि एक औरत वो मुल्हिदा है, आमिर हक भाई जानते हैं, वो बन जाती है शिया, या ये बन जाता है सुन्नी, या इसके जो ग्रोह वाले लोग हैं वो सुन्नी बन जाते हैं। फिर वो तबर्राबाजी, वो शातिमियत, वो तबर्राबाजी अच्छा बने, ये सारे होते हैं, टोला एक ही है। तो फिर ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। फिर ये इबासी कह रहा होता है कि देखो हमें जो है ना अहले बैत की जो वो बड़ी पसंद थी, इसलिए हमने लोग इस तरह की बातें, ये सारी मेरे रिकॉर्ड में है, और जाहिद भाई जो उनको भी शेयर की हुई है। लेकिन हम चूँकि वो एलानिया तौर पे कोई ऐसी गुफ्तगू करते नहीं हैं कि कोई ऐसी बात बने, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि खुद भी समझदार बने। अगर कोई शख्स किनायातन इशारातन कोई बात कर रहा है उसको ही समझ लो, ज़रूरी नहीं है कि ऊंची ऊंची ऐलान करके बताएं। तो इशारातन भी अगर बात समझ ली जाए ना दोस्तों की, भाइयों की, कि फिर उससे किनारा ही करना चाहिए। तो ये बातें रिकॉर्डेड हैं, और जाहिद भाई ने कई ग्रुप्स के ज़रिए या लोगों के ज़रिए ये बातें बताई हुई हैं। लेकिन वो जान बूझ के हर जगह पे ब्राड पे आना और ऐसी बातें करके लड़ाई करना या करवाना, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, आगे आगे तक चलती रहेंगी। आप इसके पीछे, वो आपको पीछे लगाता रहेगा, आप उसके पीछे चलते रहेंगे, ये चीज़ चलती रहेगी। तो इसको अगर रोक के जो काम चल रहा है ना, कर रहे हैं, अगर वो कम किया जाए ना अमर भाई, तो बहुत बेहतर है। जी अमर भाई। जी देखिए, ये नादिर का लाइव है, ठीक है। ये अहमदी कादियानी मुरब्बी है, ये इसने ब्रॉड लगाया था आज,
ये देखो इन्होंने क्या किया कि मिर्ज़ा कादियानी साहब का नाम ऊपर रखा है और कलमे को उसके नीचे लिखा है। मैं इनकी ब्रॉड पे चला गया, मैंने कहा भाई आप लोगों का जो भी अकीदा है आप रख लो, ठीक है, लेकिन खुदा ऐसा मत करो कि तो आप कलमे को नीचे लिख देते हो और किसी के नाम को उसके ऊपर लिखते हो, ये तो जायज़ नहीं है इस्लाम में। कम से कम कलमे को तो ऊपर रखो ना। तो उसने नहीं माना मेरी बात और आखिर तक अपना ब्रॉड ऐसे ही चलाता रहा, ठीक है। तो ये इस पर एतराज़ करना चाहिए इंसान को। लेकिन मैंने उससे कहा तो उसने कहा ठीक है, तो पाकिस्तान में जो लोग आपके उलमा हैं अपना नाम लिखते हैं नीचे ताजदार ख़त्म नबूवत, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। मैंने कहा अगर मुझे कहीं ऐसी चीज़ नज़र आए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है या जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये हम मुसलमान कभी भी किसी के नाम के नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये गुस्ताखी है, ये अल्लाह का नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ठीक है। तो फिर उसने जवाब में यही कहा कि आप लोग भी तो इस तरह की काम करते हो। मैंने कहा यार हम तो नहीं करते। तो ये बात हुई है जी। ये आपके लिए हमारे लिए गुस्ताखी है ना, उसके लिए नहीं, क्योंकि वो कलमे में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को शामिल करते हैं। ठीक है, अगर शामिल करते भी है तो लेकिन अल्लाह जो है ना, अल्लाह तो सबसे ऊंचा है ना, तो उसको मतलब नीचे लिख देते हैं। और मिर्ज़ा साहब तो जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ये कहेगा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूँ, मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ, और हमारे नज़दीक तो अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। अगर वो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं तो ये वही है मिर्ज़ा की, तो वो मिर्ज़ा को खुदा के तौर पे भी मानते हैं। हाँ, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा अगर आप खुद को मुसलमान समझते हो, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता कलमे को नीचे रख दे और उसके नाम को किसी बंदे के नाम को ऊपर रख दे, ठीक है। ये हमें कोई भी नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि आप अहमदियों को मुसलमान समझते हैं। अब्दुल्ला साहब अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मोहम्मद हूँ और मैंने मान लिया कि मैं वही हूँ, इसका क्या करें? हाँ, ये किधर है? ये फिर शेख साहब वो जरा पेश करिए रे वाला पेश करें। पेश मैं क्यों मैं कहता तो पेश करा कि तुसी मिर्जा साहब के सारे वाले पेश कर देंगे, ये नहीं कर सकते अंदर ये हमने पेश कर देने हमने में ला देना स्क्रीन पे। नहीं तुसी ते ला क्या दे लगता मैं है जगह आपको? तानु क्या गल लगता है ये काम जायज़ है, ये काम सही है इसने जो किया है अभी? मीर भाई एक ये उनके लिए अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है वो समझते हैं कि कलमे का जो मफहूम है अब वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के आने की वजह से तब्दील हो गया। नहीं मैं नहीं समझता, हरगिज़ नहीं समझता हूँ। जो झूठ बोल रहा है उस पर लानत हो। आप ओ भाई आपकी बात नहीं हो रही, मिर्ज़ाई की बात हो रही है। अच्छा आप मुझे मिर्जा ही नहीं समझते? मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बात हो रही है, आप लाहौरी हैं, क्यों भूल जाते हैं? मैं आज पता लगा मुझे कि मिर्जाइयत जो है वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब से शुरू हुई। तो मिर्जा साहब के मानने वाले क्या हुए? सुन रहे हो ना अमन नज़ीर साहब, आज पता लग गया जी कि मिर्जाइयत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद तो शुरू होती है। आज तो बात तुसी मिर्जाई उन्होंने नहीं कहना जेडे मिर्जा साहब को मानते। आप बताएं अब्दुल्ला साहब मिर्जा साहब के मानने वाले क्या हैं? अच्छा फिर शेख साहब जे मैं गल कर रहा हूँ हफीज शेख साहब मानने वाले एमपी हैं। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल अब्दुल्ला साहब से है। मेरा सवाल सिर्फ अब्दुल्ला साहब मिर्जा साहब ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ। मिर्जा साहब से कहते थे मेरे तमाम अकायद अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। सुन्नत जमात वाला उन्होंने क्या मेरे सारे अकायद वही ने
ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਾਂ, अकीदा नंबर 1 कि हाँ, अकीदा नंबर 1 ही साबित कर दें कौन से मुसलमान का ये अकीदा है कि मर्दों को 10 माह का हमल होगा। अहले सुन्नत में किसका ये अकीदा दिखाएं। ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਬਾਨਾ तो हम मिलना माला तो कतलना बे। बिल्कुल नहीं, मिर्जा साहब तो नहीं किया हुआ ये तर्जुमा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक। मैं थोड़ा अवेयर सी पहली गल ते ये गलत है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਇਤ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद में तो शुरू होती है। ये तो चौहान साहब का मौकफ है, साडा मौकफ नहीं है। लेकिन चौहान साहब जो मौकफ रखते हैं साडा काम नहीं है किसी उस मौकफ को इंडोर्स करिए। शायद अब्दुल्ला भाई ने उन्होंने मौकफ बयान किया। दूसरी गल जी जिस तरह तुसीं कीती है ना भाई, गल ये है, एक सेकंड हो गया। की गल कर रहे थे अब्दुल्ला? कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा है 10 माह के उम्र नहीं से। आओ, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आओ, एक मिनट वो जड़ी नहीं आमिर भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मर्ज़ियत जो है वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से शुरू हुई है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਗੱਲ मेरी रिकॉर्डिंग ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਨਾ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ तमाम अकायद अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। अगर तो मिर्जा साहब ये कहते ना कि मेरे तमाम अकायद सहाबा वाले हैं, मेरे तमाम अकायद नबी पाक वाले हैं, तो फिर तो मिर्जा साहब को कुछ स्पेस मिलती कि मिर्जा साहब के अकायद नूं जाके उन्हें कुरान और हदीस के उत्ते रख के परखिया जाता। जदों मिर्जा साहब ये दावा किया कि मेरे अकायद तमाम अकायद अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, तो अहले सुन्नत अक्खां दे सामने बैठे ने। अहले सुन्नत विच हनफी, शाफी, मालकी, हंबली 4 आइमा ने। उन्हां दियां कुछ चावां दियां ऑफ शूट्स ने, ब्रांचेस ने, जिहड़े छोटे छोटे अगू बने ने। हनफियां विच बने ने देवबंदी, बरेलवी हो गए। इस तरह नाल नाल सूफिया दा एक सिलसिला चलता रहा। अहले सुन्नत आई ने ना, अहले सुन्नत चो किहड़े ग्रोह नाल मिर्जा साहब दा अकीदा रलदा जरा ओहदे उत्ते हत्थ रख के दसो भी ए ओ अहले सुन्नत ने जिन्हां नाल मिर्जा साहब दा अकीदा मिलता है। ए जिन्हां ने मैं नाम ले इन्हां च किहदे नाल मिर्जा साहब दा अकीदा? मिर्जा साहब ने आपने ये कहा है कि जी मिर्जा साहब ने अहले सुन्नत का कहा है, और अगर सहाबा का कहते हैं कि जी मेरे कायद सहाबा से मिलते हैं, मिर्जा साहब पे फतवा अहले सुन्नत ने लगाया या सहाबा ने? ये बताएं, जवाब किसको देना है? शेख साहब अहले सुन्नत ने तां ही फतवा लगाया ना। अहले सुन्नत वाले अकायद उन्होंने नहीं है। मिर्जा साहब कहते मेरे अकायद अहले सुन्नत वाले की करना है फिर? ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। कौन बोलो ना सुनाओ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਇਦ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਵਾਲੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਉਹ ਗਰੋਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਦ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਨ ਵਾਹਿਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾਨ ਵਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ 1,24,000 ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? इस्लाम तो कहता है कि अगर तुम ठहर जाए बात करने दें ना। इस्लाम तो ये कहता है कुरान में है कि अगर एक भी अकीदा तुम्हारे से मिलता हुआ, एक भी मिलता हो तो उसको काफिर मत कहो, बल्कि कोशिश करो कि उसके बाकी के कायद दुरुस्त करो। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ? मैं कहना है तुम दस देंगे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੌਲ, ਤੁਹਾਡਾ नहीं, ਜ਼ਾਤੀ जाति कोड नहीं है मेरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ। अच्छा कुरान में लिखा है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे साथ एक भी अकीदा मिलता हो तो एक ही मिलता हो तो उसको काफिर करार दे दो। कुरान से कहता है अगर तुम ईमान नहीं भी ले आए तो अपने आप को मुसलमान कहो। शेख साहब जल्दी ना करो ना, ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾ मैं लड़ाई कर रही हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕਲਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਦਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਲਾਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਕਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? दसो केड़ा अहले सुन्नत है? दसो इन्हां तरह ऊंचे गल्लां दा जवाब दिओ। मुझे इस बात का जवाब दे दें कि कहा मिर्जा साहब ने कहा कि जो खुदा को ये लाश नहीं कहेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। कहा सवाल नहीं है। मिर्जा साहब ने कहा कि मैंने उन्होंने तो बता दिया कि ये लाश का मतलब है या ला शरीक, और वो ला शरीक रब किसकी है? खुदा की। अब आपने नहीं मानना, आपने उसको जो कुछ मर्जी मानना है। अगर एक शख्स ने कोई नाम बताया है खुदा का और उसने उसकी वजाहत की है कि ये कौन है, आप मुझे बता दें कि ला शरीक और कौन है अल्लाह ताला के अलावा? कोई है और भी? मैं दसना जे गल करन दिओगे तो मैं दसांगा ना। मैं ये नहीं आख्या कि मिर्जा साहब ये आखदे ने जेड़ा ये लाश ना मनेगा वो काफिर। मैं तो दावा ही नहीं कीता। मैं ये कहना मिर्जा साहब एक ऐसी चीज दस रहे ने जेड़ी अहले सुन्नत है कि मां प्यो नूं भी नहीं पता, दादे परदादे नूं भी नहीं पता। अहले सुन्नत वल जमात जिन्हां नाल मिर्जा साहब उंगली करके दावा करते हैं कि मेरे कायदे अहले सुन्नत वल जमात वाले ने। भाई अहले सुन्नत वल जमात दे दादे परदादे नूं भी नहीं पता कि ये लाश भी खुदा दा नाम है, सायका भी खुदा दा नाम है, वो कालू काला भी खुदा दा नाम है। अहले सुन्नत वल जमात दे जिल्ली बरूजी नबूवत दा सोचिया भी नहीं कदे। जिल्ली नबी भी कोई हो सकता है, बरूजी नबी भी कोई हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात दे इन्हां इल्हामात नूं खुदा दा कलाम मनदे ही नहीं है कि इस तरह दा कोई खुदा दा कलाम हो सकता है। जेड़ा मिर्जा साहब जेड़ा अहले सुन्नत मनदा है उस अहले सुन्नत दा उहदी उस तहरीर दा हवाला दिओ। बस इन्नी गल। लफ्ज़ तुसीं इस्तेमाल कीते ने, पहले उन्हें साबित करो कि अहले सुन्नत नूं ये पता है कि अल्लाह दा नाम खुदा है। कित्थों आया है? हदीस चों, कुरान चों? कित्थों आया है? ये किवें पता लग गया उन्होंने कि अल्लाह दा नाम खुदा है? मैं तो अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर मैं आज से ये कहता हूँ कि खुदा चूँकि ना हदीस में है और ना कुरान में, मैं नहीं किसी खुदा को मानता, मैं अल्लाह को मानता हूँ। ये खुदा जो है ये आपका मन गढ़ंत कोई खुदा है तो है, मैं नहीं मानता उसको। ये भी बिल्कुल जलाश की तरह ही है, कोई जलाश टाइप चीज है तो उसका नाम खुदा है, अल्लाह का नाम आगे तो मौक़िफ़ शेख साहब, अगर कोई बंदा ऐसे ना नूं डिसऑन करे और आखे कि ए लोकां ने बिदअत पा दित्ती है दीन दे विच, ते ए दीन दे विच ते चीज़ पाई नहीं सी जांदी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗॉड ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨੇ। मैं तो उन्हें पूछना कि केड़े अहले सुन्नत वल जमात दे ए कायद ने क्या मिर्जा साहब झूठ बोलिया या सच बोले? ये नहीं मैं कह रहा कि इन्हां दोवां चों किदा सही किदा ते गलत किदा, ए नहीं मैं सवाल कर रहा। मान लो कि अहले सुन्नत सुन तो लो, मान लो कि अहले सुन्नत ये कायद गलत होणगे, मिर्जा साहब दे सही होणगे, लेकिन ये ना आखो कि दोवां दे इक्को जिहा कायद ने। ए दावा बातिल है, मैं ए पे कर जी। का कोई अकीदा नहीं है कि जी ये लाश को खुदा मानना मेरे अकीदे में शामिल है। ये आप कह देना कि ये उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला को जलाश भी मानना जो है वो मेरे कायद में शामिल है। अगर मैं उसको जलाश नहीं मानता, या जो लोग अल्लाह ताला को जलाश नहीं मानते वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। कहीं अकीदा मत कहें, एक ये कहते कि ये उनका एक कंसेप्ट है कि अब मुझे ये बताया गया है कि जी ये लाश यानी ला शरीक है अल्लाह ताला जो है। किसने मिर्जा साहब को बताया कि ये लाश? नहीं, जिसने भी अल्लाह ताला नहीं बताया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहने मेरा आपसे फिर मुझे आप रोकते हैं, फिर कहते हैं यार तू बोलता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने मुझे ये दिखाना है ज़रूर साहब की किताब से कि जब अल्लाह ताला को जो अल्लाह ताला होने के अलावा ये लाश नहीं मानता, ये मेरा अकीदा है, बुनियाद है मेरी, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। बात यह है, पहला सवाल मैंने आपसे किया कि ये मिर्जा साहब को किसने बताया कि ये लाश खुदा का नाम है? ये मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे मेरे खुदा ने बताया है।
अब मिर्जा साहब का दावा ये है कि इन इल्हामात पर जो खुदा ने मुझे किए, खुदा ने इल्हाम करके, उनके खुदा ने इल्हाम करके बताया ना कि ये लाश नाम है, इन इल्हामात को मिर्जा साहब कहते हैं मैं इन पर ऐसे ही मान लाया हूँ जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर। बताएं कि अहले सुन्नत वल जमात में से किस अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि कुरान की तरह का कोई और कलाम भी इस दुनिया में नाजिल हो सकता है और वो कलाम उस पर ऐसे ही ईमान लाना चाहिए जैसे कुरान पर, इंजील पर, तौरात पर, ज़बूर पर। फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि जो इन इल्हामात को नहीं मानता, इस कलाम को नहीं मानता, तो मिर्जा साहब कहते हैं कि वो जहन्नम का ईंधन है, वो जहन्नमी है। जो मेरे इन इल्हामात को नहीं मानता, मेरी तालीम को नहीं मानता। यहाँ तक उन्होंने लिखा हुआ है कि खुदा ने मुझे साफ ये कहा है कि जिसको तेरी दावत पहुंची और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान ही नहीं है। गाल ही मुक गई। तो मिर्जा साहब को अहले सुन्नत वल जमात से नज़ीर साहब, आपके दलाइल मजबूत हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपका खुदा और मिर्जा साहब का खुदा एक नहीं है, दुरुस्त बात है। जज़ाक। ये जो हेराफेरी करते हैं ना, दाल गाने की कोशिश करते हैं, मिर्जा साहब के अहले सुन्नत वाले कायदे हैं, मिर्जा साहब मुसलमानों वाले का, वो भाई ना अहले सुन्नत वाले ना मुसलमानों वाले, ना मिर्जा साहब की बातें अहले सुन्नत से कोई मुताबिकत रखती हैं ना मुसलमानों से। वरना हफीज शेख साहब, लोगों को यार कोई दुश्मनी है मिर्जा साहब से जाती, मिर्जा साहब लोगों ने दुकाना खोइया ने, मिर्जा साहब की इन बातों की वजह से इख्तलाफ है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि ये खुदा ने मुझे बातें बताई हैं। भाई हम नहीं मानते, अहले सुन्नत में से कोई नहीं मानता, अहले इस्लाम में से कोई नहीं मानता, कोई शिया भी नहीं मानता, सुन्नी भी नहीं मानता, कोई भी नहीं ये बातें मानता। इसलिए मिर्जा साहब को टोटली अलहदा किया गया कि भाई आप ना अहले सुन्नत से आपका कोई लेना देना, ना अहले तशय्युस से, मुस्लिम उम्मत से आपका कोई लेना देना नहीं, आपका अलग ही मजहब है। तो ये है कि जब मिर्जा साहब कहते हैं मैं अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखता हूँ, तो ये अहले सुन्नत वल जमात मिर्जा साहब ने कोई खुद ही बनाया होगा अहले सुन्नत वल जमात का, वो आम अहले सुन्नत वल जमात वाला अकीदा उनका नहीं है। ये तो दुरुस्त बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात करोड़ों की तादाद में बसते हैं। मैंने कहा कि अहले सुन्नत के अंदर ही हैं अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, इसी तरह से पूरे हनफी जितने भी हैं, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये चारों आइमा अहले सुन्नत के हैं। बताओ अहले सुन्नत में से किसके साथ मिर्जा साहब की ये बातें मिलती हैं? है कि हमें ये मानना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तो फिर ये जानबूझ के जान छुड़ाने के लिए करते हैं, जानबूझ कर। यहाँ फिर इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। अब एक नहीं, अमर भाई और हम ये सारे बैठे इधर आपको तस्वीरों वाले दे सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब की जो अपनी बात है कि वो कहते हैं कि मैं अपने कलाम पे ऐसे ही मान लेता हूँ जैसे कुरान पे, अल्लाह के कलाम पे। कहते हैं कि बस मेरी सच्चाई, मेरी कमाल ज़ुबान दानी जो अल्लाह की तरफ से मुझे बताई गई है, अगर उसमें शक करते हो तो, ये मिर्ज़ा साहब का कॉल कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो मेरे बयान और उम्दा तौर पर इजहार मुतालब पे तुम्हें शक है, और मेरी उस शान पर जो मशहूर और हदीसों में जिक्र है, जो दर्द हकीकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली, उसका इनकार है, उसका इनकार है। उन मुतालब पर, उन मफाहिम पे आप इनकार कर रहे हैं और कहते हैं मेरे लिए मानना ज़रूरी है। जी अमर भाई। शेख साहब, जिल्द नंबर 21 ये कह दिया है जी जनाब, मुझे जो बातें खुदा की तरफ से मिली हैं, जो इनका इनकार करते हैं वो मुसलमान ही नहीं। मैं झूठा तो इस्लाम झूठा, तो जो ये इस्लाम लेके बने मिर्जा साहब के मुताबिक तो झूठा इस्लाम है, उनके साथ कैसे हम मिल सकते हैं? अहमद नज़ीर साहब मेरे भी सवाल कर जाते हैं कि जामिया मस्जिद दिल्ली में जो मिर्जा साहब ने ऐलान किया या अपने अकायद का इजहार किया, वहाँ पे तो मुसलमान मौजूद थे या उस वक्त उस दिन सारे कादियानी जमात के लोग मौजूद थे सामने जामिया मस्जिद दिल्ली में? उन्होंने तो यही मुसलमान उन्होंने यही बयान किया था, जिस तरह आप कह रहे हो धड़ल्ले के साथ कि भाई उनका कोई कायद नहीं था अहले सुन्नत वल जमात। वो तो कहते हैं दूसरे इल्ज़ामात मुझ पर लगाए जाते हैं कि ये शख्स लैलतुल क़द्र का मुनकर और मौज़ात का इनकारी और मिराज का मुनकर और नीज़ नबूवत का मुद्दई और ख़त्म नबूवत का इनकारी है। ये सारे इल्ज़ामात दरोग और बातिल हैं, महज
इन तमाम उमूर में मेरा वही मज़हब है जो दीगर अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है। ये जामिया मस्जिद दिल्ली में कह रहे हैं, नीचे जो मुसलमान बैठे थे या तो ये मान लें कि वो बिल्कुल सारे जाहिल थे, उनको इल्म ही नहीं था ये शख्स क्या बात कर रहा है, उनको शऊर ही नहीं था। उनमें से किसी ने उठ के आवाज़ें नहीं था कि ये शख्स एक मिनट चौहान साहब बात कर लेने दें, इस तरह ना करें। नीचे से कोई शख्स क्यों नहीं उठा, आमिर नज़ीर जैसा जो मतलब जिस तरह आमिर नज़ीर साहब धड़ल्ले से कह रहे हैं, इसी तरह कोई मुसलमान उठता कहता है ये शख्स झूठ बोल रहे हैं, खाना खुदा में खड़ा होके, जामिया मस्जिद दिल्ली में खड़ा होके झूठ बोल रहे हैं कि इसके कायद हमारे वाले हैं, ये झूठा है ये शख्स। क्यों नहीं कहा, क्यों खामोशी इख्तियार रखी? सब बड़ा मुश्किल होता है ना, साथ साथ मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं और मैं अब आपकी बात कही है। मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे शायद पहले सुनने वाली बात वाली आप जो बातें मिर्जा साहब ने कहा था कि ये मेरे अकायद हैं, मिसाल के तौर पर लैला कुल कदर के बारे में वो बयान कर सकते हैं, आप अभी चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ पर उनके सामने किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, वो तो मुझे इस वजह से पता नहीं है कि वो किन लोगों के सामने बैठकर अपनी सफाई दे रहे थे, कौन बोला कौन नहीं बोला, वहाँ पर ये बात क्लियर थी। लेकिन मिर्जा साहब उन लोगों को तसल्ली दे रहे थे जो लोग कंफ्यूज थे उस वक्त, थोड़ी कंफ्यूजन रखते थे ना मिर्जा साहब के बारे में कि शायद ये कि यार नमाज रोजा करने वाला बंदा है उसको काफिर करार दे रहे हमारे मौत की जाती, उनको तसलियाँ दे रहे थे। पर हम आज चेक कर लेते हैं लैलतुल कदर के बारे में मिर्जा साहब का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा पेश करें। अभी पता लग जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात लैलतुल कदर का क्या मानती है और मिर्जा साहब क्या मानते हैं। कदर के बारे में मिर्जा साहब का जो कंसेप्ट है वो आपके कंसेप्ट से 1000 दर्जे बेहतर है। आपका कंसेप्ट गलत है, आप ये मत कहें, क्या कहें आप तो वो कह रहे हैं, मत कहें, कह रहे हैं तारिक चौहान साहब सबर करें, गलत ही बात कर लेने दें, मुझे कर लेने दें ना, हंसने की क्या जरूरत है, चलो का क्या मतलब है। आप खुद ही बयान कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है। शोर बहुत है। नहीं, मैं कह रहे हैं आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है, यही तो हम कह रहे हैं। आपस में नहीं मिलता, अहमद अली साहब है ना, अहमद नजीर साहब को जरा म्यूट करना कह रहे हैं, म्यूट कर लो। बात ये है कि भाई ये लैलतुल कदर के बारे में जो बात अब इन्होंने करनी है वो मुझे पता है, तो वो मिर्ज़ा साहब का जो कंसेप्ट है मेरे नज़दीक वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल कदर, हमने इसको कुरान को लैलतुल कदर की रात में नाज़िल किया। अब ये कहते हैं ये एक रात में, जबकि मिर्ज़ा साहब उसको एक ज़माना कहते हैं, क्योंकि जैसे कि कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ वो भी लैलतुल कदर की रात थी, और आपको पता है कि कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल हुआ, एक रात में तो मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, जब मुकम्मल हुआ वो रात भी लैलतुल कदर की थी। अब अगर मिर्ज़ा साहब उसको एक ज़माना कहते हैं और ये इसको कहते हैं कि एक ही रात है, तो वो अलग बात है, मुकम्मल हुआ है उस रात को। लेकिन ये कहना कि पहली आयत से लेके आखिरी तक वन्नास तक वो उसी रात में हुआ, ये गलत है। ये बात मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं और ये बात समझ भी आती है कि 23 साल का अरसा लगता है अगर एक चीज़ को मुकम्मल होने में। 23 साल में एक बिल्डिंग तैयार हो और जिस दिन वो तैयार हो, आखिरी दिन वो बिल्डिंग तैयार हो और आके मैं कहूँ कि जी ये बिल्डिंग आज के दिन ही तैयार हुई है, यानी इससे ये मुराद ली जाए कि ये आज ही सुबह शुरू हुई थी और शाम तक ये मुकम्मल हो गई है, ये तो बात गलत है। ये बात है, आपका क्या कंसेप्ट है मैं नहीं समझ। तब मैं यही आपको बात अभी मैंने की है, आपने खुद ही उसी बात जिसके ऊपर हम डिस्कस करें ना, आपने खुद ही उसकी तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल मिर्ज़ा साहब का कॉन्सेप्ट और था, अहले सुन्नत वल जमात का कॉन्सेप्ट और है। तो यही आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि भाई आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है, मिर्ज़ा साहब जो इस्लाम पेश कर रहे हैं उनका इस्लाम है, हमारे इस्लाम से उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। और यही बात मिर्ज़ा साहब ने खुद भी कही है कि मैं जो इस्लाम लेके आया हूँ वो लोगों को नहीं था पता, जो उनकी एक्सप्लेनेशन है, जो कुरान की तफसीर उन्होंने की है, जो हदीसों के मुतालिक उनका कॉन्सेप्ट है, वो इन लोगों का तो नहीं है ना, तो इनसे डिफरेंट हो गए ना। तो यही बात है, वो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मेरे नज़दीक मिर्ज़ा साहब का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, गलत है।
और शेख साहब ये तो हमारी बहस ही नहीं है, एक दफ़ा पहले कहा है, ये दूसरी दफ़ा मैं रिपीट करके कहने लगा हूँ। हमारी बहस ये नहीं है कि अहले सुन्नत का कॉन्सेप्ट सही है या मिर्ज़ा साहब का कॉन्सेप्ट सही है। हमारा सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा साहब के अकायद और नज़रियात अहले सुन्नत वाले थे, हाँ या ना। आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने दिल्ली की मस्जिद में बैठ के कहा, कसमें खा खा कर कहा कि मेरे अहले सुन्नत वाले अकायद और नज़रियात। अभी आपने खुद बताया कि अहले सुन्नत तो लैलतुल कद्र को ऐसा मानते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब वैसा मानते हैं। इसका मतलब है कि सेम नहीं है ना, सेम अकायद नहीं है ना। तो मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला ना, कहा कि अहले सुन्नत वाले मेरे अकायद हैं। अब ये बताएं, झूठ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने आपको पहले भी एक बात की, जैसे आपने ये लाश का नाम लेके आपने कहा कि ये मिर्ज़ा साहब के अकायद है। क्या लैलतुल कद्र को एक रात में, वो कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल कद्र की एक रात में या एक ज़माने में माना जाना जुज़्व ईमान है, अकायद है? आप हर बात को अकीदा कह देते हो। मैं तो नहीं समझता हूँ कि हर बात अकीदा है, जो अकीदा तो नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने अकायद की बात की है। आप या तो मुझे बताएं कि लैलतुल कद्र को, लैलतुल कद्र में कुरान का नुज़ूल मुकम्मल तौर पे मानना एक अकीदा है। जो नहीं मानता दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है, हदीस में भी आया है, फिर मैं मानूंगा। पहले आप उसको अपना अकीदा तस्लीम करें। लैलतुल कद्र को रात मानना, जैसा कि कुरान ने बयान किया है कि ये 1000 रातों से बेहतर एक रात है। लैलतुल कद्र को रात मानना अकीदा है। कुरान का एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ वो हमारे अकायद में, क्योंकि नसूस सरीहा है, नस्स कतई है। ये लैलतुल कद्र को रात ना मानने वाला जिंदीक है, काफर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। आप कहते हैं वो अहले सुन्नत है। भैया कौन है पमीरी बट? बात ये है कि जो सवाल हम कर रहे हैं उस पर आप क्यों नहीं आ रहे? आप दावा कर रहे हैं कि मिर्जा साहब का अकीदा दुरुस्त है, हमारा गलत है। मान लिया भाई, हमारा अकीदा गलत है, मिर्जा साहब, लेकिन हमारा और मिर्जा साहब का सेम तो नहीं है ना। हमारा गलत उनका सही है, हमारा गलत उनका सही है। हाँ, लेकिन ये ना कहो कि हमारा वही अकीदा जो मिर्जा साहब, एक मुंह से कहते हो आपका गलत अकीदा है, लैलतुल कद्र एक जमाना है, रात नहीं है, ठीक है, फिर कहते हो तुम्हारा भी वही अकीदा है। हम मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं मैंने हर किसी कहा कि मैंने आपसे कहा कि आप इसको अपना अकीदा पहले साबित करें कि हमारे अकायद में अकीदा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हम इसको अपना अकीदा मानते हैं, ये अकीदा है हमारा। तो हम भी इसको अपना अकीदा मानते हैं। हम कब कहते हैं कि हम इसको अकीदा नहीं मानते? तो आपका अकीदा सेम है। हफीज शेख साहब ज़रा बात सुने, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको बात समझ नहीं आ रही। आप खुद ही बयान कर रहे हैं कि आपका और इनका अकीदा इस एक चीज़ में डिफरेंट है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हमारा उनका अकीदा डिफरेंट है। वो अहले सुन्नत वल जमात जिसको वो रेफ़र कर रहे हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात वो अकीदे नहीं रखते। अब देखिए, यलाज से बात शुरू हुई थी ना, यलाज के मतलब सुन लें। मिर्ज़ा साहब ने कहा ये इल्हामी नामा अल्लाह ताला ने मुझे बताया है, और जो मेरे इल्हामात को झूठा समझता है वो मुझे झूठा समझता है। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहे कि ये लाश का नाम जो मिर्ज़ा साहब को बताया गया है ये खुदा की तरफ से नहीं, खुदा ने पे इफ्तरा किया मिर्ज़ा साहब ने, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो मुझे बड़ा काफिर समझता है, इसलिए खुद बड़ा काफिर हो जाता है। तो ये लाश खुदा का नाम है, अगर कोई नहीं मानता तो वो मिर्ज़ा साहब के नज़दीक काफिर है। अकीदा बन गया कि नहीं? क्योंकि वो इल्हामी लाम वो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, वो दूसरे लोग तो नहीं मानते उसको। तो जाहिर है कि वो कहते हैं ये इन्होंने खुदा पे इफ्तरा किया है, और इफ्तरा करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। फमान अज़लमो मिम्मन इफ्तरा अल्लाह का, इससे बड़ा जालिम भी कोई हो सकता है जो खुदा पे इफ्तरा करे। मुझे खुदा ने इल्हामी तौर पे बताया उसका नाम ये लाश है। चौहान साहब एक मिनट, जो नहीं इसको मानता कि खुदा ने उनको बताया है, वो उनको सबसे बड़ा काफिर समझ रहा है कि खुदा के ऊपर झूठ बांध रहे हैं, तो खुद बड़ा काफिर हो गया मिर्ज़ा साहब के मुताबिक। चलें ठीक है, आप समझ गए। लेकिन मैं अपना आमिर नज़ीर साहब से एक सवाल करता हूँ। आमिर नज़ीर साहब, ये जो सूरह कदर है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन। तो आपको आयत नहीं पढ़नी आती, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, करे मेरे से मिस्टेक होगी। पढ़नी ये ना कहें कि पढ़नी नहीं आती। रब दी मार है, और रब दी मार किसे मरजाई दे मुंह चो कुरान से निकलदा नहीं, गल पर सवाल मैं यार हूं, अगर मेरे को कोई लफ्ज़ मिस्टेक हो गई है ते ओदा नहीं मिस्टेक नहीं, रब दी मार
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ- ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ क्यों नहीं पढ़ते शेख साहब? ਤੁਸੀਂ मिर्जा साहब का कलाम छोड़ दें, छोड़ दें, ऐसे बारे सवाल मुझे सिर्फ- बताएं, मुझे छोड़ दें ये बात। आप आते हैं कुरान पे। कुरान क्या है? कुरान है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। अब उसका तर्जुमा आप क्या करते हो कि जी हमने इसको एक रात में किया। मिर्जा साहब करते हैं कि जी इसको इतने सालों में किया। दोनों को निकाल दें, एक रात को भी निकाल दें, दिनों। आप इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र पे यकीन रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आप बताएं क्या अकायद में फ़र्क है? कोई तर्जुमा नहीं लाना, ना आपने अपना लाना है ना मैंने लाना है। अरबी के आगे आपका यकीन है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, मेरा भी है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। बड़े नादान ये हो। वारदात नहीं होनी। आप अकीदे में इख्तिलाफ दिखाएं मुझे। कुरान पे बात करनी यार है तो आमिर भाई, अब शेख साहब एक मिनट रुकना, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆमिर भाई, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ है। वली साहब आप मुझे बताएं, एक मिनट आमिर नजीर साहब, मुझे वली साहब से बात करने दें। वली साहब से बात आपने- वली साहब पहले पीछे फंसे ने। नहीं, वली साहब पहले अपना मसला हल कर लो। सुनो, मेरी बुनियादी बात ही नहीं समझ आ रही आपको शेख साहब। नहीं, मुझे समझ आ रही है, मुझे कोई नहीं समझाए, मुझे ना समझाए। अब आप साबित करते हैं कि जो आपका अकीदा है वो दुरुस्त है, मेरी जो इसमें समझ आप है वो बहस ठीक करना है। चाहते हैं। इनको साथ में मुझे एक बात इख्तिलाफ करने दें। अकायद का है, तारिक एस्टैब्लिश हो गया। तारिक जवान साहब एक मिनट आ जाएं, मुझे वलीद साहब से एक बात पूछने जो आमिर नजीर वलीद ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੋਕੇ ਫਸਣੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ नहीं ਫੈਸਲਾ वलीद ਕਰੋ साहब ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ बताइए, ਕਹਿ मैं ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, मैं ਕਰੋ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ mute ਲਾਓ। ਇਹ ਦਿਓ, ਆमिर नजीर ਸਾਹਿਬ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ शेख ਨੂੰ साहब ਮੈਨੂੰ शेख साहब ਵਲੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਦੇਰ ਲੱਗੇ। शेख साहब जिन्नी देर मैं ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਨਾਲ, ਡੁੱਚ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ? ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਸੇਮ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਕੀਦਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਤਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਯੌਮ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਈਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਬਗੈਰ ਕਿ ਮਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ईमान कोई है किसी कम दा? अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने कुरान को किस ज़बान में नाजिल किया? अल्लाह ताला ने कहीं लिखा है कि इसका तर्जमा पढ़ो और तर्जमे के मुताबिक इसको समझो। सुन लो ना अल्लाह ताला ने जिथे कुरान नाजिल किया सी ना उत्थे वाली कौम दी ज़बान च नाजिल किया सी, लेकिन जदों इनू ला महला बाहर दूजियां कौमां विच कुरान करीम गया तो ट्रांसलेट तो करना ही पैना है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਫਹੂਮ ਮਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਬੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਕਰਾਚੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੂਬ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜਮੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਜਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰ व इन्ना लहू लहाफिज़ून ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੁ ਫੀ ਲैलतुल क़द्र ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਐਸ ਆਇਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਰਜਮਾ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਨ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਝ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲैलतुल क़द्र ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? हाँ है, अभी की गल है। आप क्या कहा कि मिर्जा साहब, मैं आप क्या चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं कहूँगी कि मिर्जा साहब नबी करीम को आखिरी नबी नहीं मानते थे, ये गलत है, ये चाहते हैं। ਸੁਣ ਲਓ ਐਡੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਰਦਈ ਵੀ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਡਟਾਈ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਉਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾਓ, ਬੋਲੋ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਗਾ ਨਾ ਜਾਓ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਗੈਰ ਕੁਰਾਨੀ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ। ਪਿਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ वाले किसी सहाबी ने नहीं किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस से नहीं फरमाया। ये मिर्जा साहब ने खुद ऐसे गल्लां बनाई हुई हैं अपने इल्म तो। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ कहता है ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਯਾਰ ਐਡੇ ਤੇ ਢੀਠ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਛੱਕੇ ਬੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਟੁਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਊਅਰ ਸੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਗਿਣ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਹਮਲਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ। और यहाँ गिनती कर, एक से हो गया बालर अल्लाह, एक से बालर अल्लाह हो गया, जी हर बार तो अल्लाह हो जाती है। तो साहब एक से मिर्जा साहब का अकीदा हो गया अल्लाह खत्म नबूवत वाला, एक तो हो गया लैलतुल क़द्र वाला। और किहड़ा अकीदा है सुन्नत नाल रलदा ना? दसो त्रीजे अकीदे दा नाम लो। मिर्जा साहब झूठ बोले मेरे कायद अहले सुन्नत वाले जी। दसो त्रीजा किहड़ा अकीदा अहले सुन्नत वाला? हयात मसीह का अकीदा, फिर फरिश्तियां दे मुतल्लिक उन्हां दे अकीदे बेशुमार अकीदे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਏ ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਏ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। तो मुझे ये बताएं कि जब हम ये कहते हैं कि ये अहले सुन्नत से क्या मुराद है? कि वो जो सुन्नी कहते हैं वो बात किसकी सुन्नत? सुन्नियों की सुन्नत या नबी की सुन्नत?
नहीं जो सुन्नत मिर्जा किसकी है? साहब ਤੇ अहले सुन्नत ਉਹ से ਜਿਹੜੇ मुराद ਬੰਦੇ ले ਸਾਹਮਣੇ रहे हैं ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੁਨਨਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰੋ ਸੌਰੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਬੂਦ ਕਰੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਐਡੀ ਡਟਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ को ही फॉलो कर रहा हूँ। ਤੇ ਜੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਇੱਕ बोल रहे हैं। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ ਲैलातुल कदर ਖਲੋ ਜੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਰ ਅਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮੇ ਨੂੰ। फिर नंबर 1 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आमिर नज़ीर साहब ने कहा कोई और मुसलमान बात नहीं करेगा। और शेख साहब एक मिनट रुक जाओ। नहीं है वो आमिर नज़ीर साहब ने आपके मतलब का है, यहाँ कोई और मुसलमान बात नहीं करेगा, मैं करूंगा। आप मुसलमान नहीं हो, बात कर रहा हूँ। ਲੈਣ ਦੋ ਉਹ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਭ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਡੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ वलीद की बात तो सुन लो क्या कह रहा है प्लीज शेख साहब। यार उनके तारिक साहब और उनके शेख हुक्म साहब ने कहा कि कोई और अल्लाह का मुसलमान वास्ता बात नहीं है, करेगा। अल्लाह का वास्ता है, वो कुछ कह रहे सुनने दें। तारिक चौहान साहब ये फैसला हुक्म ने किया है कि कोई और मुसलमान बात नहीं करेगा। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। देखो मेरी ਅੱਲਾ बात ਦੀ सुनो, मैं ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। तारिक अपना की ना अमन नज़ीर साहब आपने सीधा मुझे लानती कह दिया। मैंने आपको कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਿ ਐਸੇ ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਕੌਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ अकीदा है कि मिर्जा साहब के कायद वो नहीं है जो इनके अहले सुन्नत के हैं, और उनका भी वही है। मेरा ये नहीं मानना है, तो आपको किसकी बात सच लगेगी? वही। ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਜੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲ ਲੈ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਲैलातुल कदर ਦਾ ਰਲਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਲਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ? ਹਯਾਤੁਲ ਫਾਤਿਮ ਸੀ ਰਲਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ। ਹਯਾਤੁਲ ਫਾਤਿਮ ਸੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਲਦਾ? ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ, 11 ਖਿਲਾੜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਤੀ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਚਲੋ ਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਅਕਾਇਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਇਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਅਕਾਇਦ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ
ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਦੋ ਮਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਚਪੇੜ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਪਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਚਪੇੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਮਾਮ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ, ਸੈਯਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੇਲਵੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਲਿਖਤ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੂਜਾ ਦੱਸੋ, ਤੀਜਾ ਦੱਸੋ, ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੈਨੀ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਵਾਫਕ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮੌਲਵੀ। ਕੀ ਅਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਮਾ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਕਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਬਦਬਖਤ ਮੁਫਤਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਖੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਤਲਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਤਲਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਹ ਬੁਤਲਾਨ ਹੈ, ਬਦੀਹ ਬੁਤਲਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਰਲਦਾ? ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਰਲਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ अहले सुन्नत वाले कायदे ना मेरे। मिर्जा साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल में अपनी वो पेश किया था, उसमें ये कहा था अव्वल ये सही है कि जिस शख्स को उलमा काफिर करार दें, आमिर नज़ीर जैसे ब्रैकेट में मेरी तरफ से लिख लें, क्या ये सही है कि जिस शख्स को उलमा काफिर करार दें वो फिलवाक़े दार इस्लाम से खारिज हो जाता है, ख्वाह इसके अकायद इस्लाम के ऐन मुताबिक हों और रात दिन हलफ उठाकर वो ये ऐलान करता हो मैं मुसलमान हूँ और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखता हूँ, तमाम इस्लामी अमाल वो बजा लाता हूँ और खिदमत इस्लाम के काम को दूसरों से बढ़ चढ़ कर अंजाम देता हूँ। जिस शख्स के जरिए हम सुनो हसनाबाद है, जिस शख्स के जरिए कुरान के मेरे अल्फाज नहीं है मिर्जा साहब के बारे में, जिस शख्स के जरिए कुरान के तराजम
दुनिया में छाया हो, कब्रिस्तानों में मस्जिदें बनती हों, गैर मुसलमानों के दिलों में इस्लाम पर ईमान पैदा किया गया हो, इसको महज उलमा के फतवों पर इदारा इस्लाम से खारिज किया जा सकता है? ये सवाल है। अगर ये सही है तो लीग कौंसिल को सबसे पहले इन फतवों पर गौर करना चाहिए जो साबका बुजुर्गान इस्लाम पर उलमा की तरफ से लगते रहे, और आज भी मुख्तलिफ फिरका है इस्लामी के उलमा एक दूसरे पर लगाते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जैसे जलीलुल शान बुजुर्ग को काफिर, बिदअती और जंदीक के खिताब दिए और इन्हें जेल खाना में भिजवाया और जहर देकर शहीद करवाया? वो कौन थे जिन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को शैतान से बढ़कर कहा, शैतान से बढ़कर कहा और इस तरह तरह की अजियतें पहुंचाई? वो कौन थे जिन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह को बिदअती कराकर ऊंट पर उल्टे मुंह चढ़ाकर फिराया, कैद खाना में भिजवाया और बेदर्दी से आपकी मशकें बांधी गई और हाथ पांव से उखड़ गए? वो कौन थे जिन्होंने इमाम अहमद हम्बल के पांव में भारी जंजीरें डलवाई, तमाचे लगवाए, कोड़ों से पिटवाया? दसो जी। और मिर्जा साहब से कुछ कही जाए तो मैं देना या तो मान लो कि उन्होंने भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਮੇ ਪਿਆ ਲਾਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਫਤਾਵਾਜਾਤ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮਸਲਨ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਤਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਆਉਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ, ਦੀਗਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ रहना है। नहीं, तुसी जो कादियानी जमात ऑन करती है वो आपको मेरे पे ना साबित करें कि भी ऑन करते हैं। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं की कि हम ऑन करते हैं। मिर्जा साहब के ऊपर भी ऐसे ही फतवे लगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से मुझे बताएं, इमाम बुखारी को बुखारा से निकाला गया और उनके ऊपर समरकंद की जो तंग की गई, उन्होंने क्या दुआ उनके मुंह से क्या दुआ निकली थी? अहमद नजीर साहब ये बताएं कि उनके मुंह से क्या दुआ निकली? सारा पता है, चलो कोई फर्क नहीं पैंदा दुआ नहीं। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत किसने खत्म किया वो फतवा? सब तो वो फतवा किसने वापस किया कि हमने गलत दिया था, हमारे से गलती हुई है? हकीकत ने ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, सच ने ਉਹਨੂੰ सच ने झूठ ਨੂੰ नाबूद करते हैं। फतवे की हैसियत खत्म हो गई ना। आज कोई इनको काफिर मानते हैं? सारे मुसलमान भी इनको मानते, इमाम मानते हैं। सबसे बड़ा इमाम मानते हैं इमाम मुहद्दिसीन में से, आइमा मुहद्दिसीन में से सबसे बड़े इमाम बुखारी मानते हैं। हालांकि इमाम मालिक ने उनसे पहले इमाम मालिक लिखे। सबसे ज्यादा इज्जत
میری گل پیچھے رہ گئی حفیظ شیخ صاحب ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ हैं कि वो हजरत ईसा से अफजल है मिर्जा साहब ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰੋਕੀ मैंने कहा कि हम नहीं मानते ना ऐसी कोई बात नहीं है ना मैंने कोई स्टेटमेंट दी है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ नहीं मेरी गल सुन ये वलीद साहब ने जी गल की है तो मैं मानता हूँ नहीं मानता मैंने तो ना ये कहा है कि मैं मानता हूँ ना ही मैंने नहीं ना ही मैंने ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ नहीं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ नाम मानो वो तो मिर्जा साहब का अपना बयान है, आप माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वलीद साहब ने ये बात कहाँ से लाई है कि मैंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं नहीं मानता या मैंने ये स्टेटमेंट दी है मैं मानता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ मैंने मेरे वलीद साहब से पूछते हो कि मैंने दलील क्यों पूछा है कि वलीद साहब ने क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा कि मैं मानता हूँ तो अफजल या मैं नहीं मानता हूँ तो ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੱਕਦੇ मेरी ਹੋ तरफ एक गलत बात ਪੁੱਛਿਆ मसलूक की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ नहीं मैं इस ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ मैं झूठ बोलांगा ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ मान लेंगे मुझे वलीद साहब से ये हाँ, फराडियल हो रही है। वलीद साहब से मुझे ये पूछ के थे उन्होंने ये दजल क्यों किया कि अभी वली साहब ने कहा कि मैं मिर्जा साहब को अफजल नहीं मानता मैं ये कह रहा हूँ मैंने ऐसा ना कहा कि न मैं नहीं मानता ना मैंने ये कहा कि मैं मानता हूँ उन्होंने ये बात ही क्यों की जो बात हुई नहीं भाई वो बात इसलिए की है ये आमिर भाई आपको कह रहे थे ना जब कादियानियों वाले आपको सारी बातें बता रहे थे कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं उन्होंने कहा कि वो तमाम नबियों से अफजल मानते हैं सिर्फ नबी पाक को निकाल के तो आपने कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दी थी कि आप कादियानियों वाले अकीदे मेरे पर क्यों थोप रहे हैं मैं तो ऐसी कोई बात नहीं मानता ना मैं ऐसी कोई बात करता हूँ उस पर मैंने आमिर भाई को कह दिया कि क्या ये नहीं ये इनकी इस बात से यही बात निकल के आ गई है कि मिर्जा साहब को आप तमाम नबियों से अफजल नहीं मानते हैं तो बता दें नहीं मानते तो बता दें बहरहाल आपने शेख साहब जी शेख साहब देखो मेरी गल सुनो ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ तो मैं कहा नहीं मैं तो जवाब अभी नहीं दूंगा मैं अभी नहीं बोलूंगा कौन मेरे ते इतबार करे लोग आखन के बेईमान मुनाफिक जा लगे यार फिर ये करन लगे गल खरी करो अगर तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦਾ